قرأ سورة الفاتحة. آپ سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں برائے ایصال ثواب سے محمد صادق رضا بد سید کاظم رضا. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات پڑھیں کر اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی جس میں صبر کا اور صابرین کا تذکرہ ہے. آج میری گفتگو کا عنوان صبر ہے اور اسی لیے میں نے ان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. یہاں پر مفسرین نے صبر کے معنی روزے کے رکھے ہیں کہ روزہ صبر کا بہترین مظہر ہے. اس میں صبر انسان کرتا ہے کھانے سے، پینے سے اور تمام چیزوں سے، اس لیے روزے کو بھی صبر سے تعبیر کیا گیا ہے. تم مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور پھر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، سمجھنا تو درکرار کہو بھی نہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں کہ ان کی حیات کیا ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، اور پھر آواز دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، بشیئن، کچھ چیزوں سے، کیا چیزیں ہیں؟ من الخوف، خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائیں گے، والانفس، اور نفوس کی کمی سے آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کیسے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ان کی زبان پہ یہ کلمہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اب یہ ہیں کون ہستیاں صابرین؟ تو قرآن ان کے لیے حتمی فیصلہ کرتا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات من ربہم ورحمہ، درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ان کے رب کی جانب سے درود بھی ہے ان پر اور رحمت بھی ہے ان پر۔ اور پھر کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، گائیڈڈ پیپل، دے آر گائیڈڈ پیپل، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان پر درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ پتہ چلا صبر کرنے والوں کا وہ مقام ہے، صبر کرنے والوں کو معذبت حاصل ہے تو کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہی کہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کی جانب سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ والصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کا امتحان لیا گیا، امتحان ہر ایک کا لیا جاتا ہے دنیا میں، اور امتحان لیتے وقت اس کی کیپیسٹی کو، امتحان کی قوت کو، امتحان کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر بیٹا چلا گیا تو باپ کا امتحان ہے، بھائی چلا گیا تو بھائی کا امتحان ہے، اگر کسی کا شوہر چلا گیا تو بیوی کا بہت بڑا امتحان ہے، یہ امتحان ہے ان کے لیے، آزمائش ہے ان کے لیے۔ اور قرآن نے سورہ ملک میں کہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ کہ اقتدار کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے احسن عمل کس کا ہے، عمل کے میدان میں سب سے بہترین کون ہے، تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ صرف امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ موت و حیات کیوں اللہ نے خلق کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب آزمائش ہر ایک کے لیے ہے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، لہذا کوئی فرد بھی امتحان سے بچا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے، ہر ایک کا امتحان ہونا ہے۔ اب جو صبر ہیں ان کی، صابر ہیں ان کی نشانی کیا بتائی گئی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ جو پہلا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کے معنی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے تملک میں ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے، یعنی ایک ایک چیز، ہر شے اللہ نے خلق کی ہے اور اسی کا تصرف ہے۔ تو جب مالک وہ ہے تو مالک اپنی چیز واپس لے رہا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جو مالک ہے وہ اپنی ملکیت کو واپس لے رہا ہے۔ ہم تو دکھی ہیں، ہم تو رنجور ہیں، ہم تو غمگین ہیں، اس لیے جو ہمارے ساتھ تھا
रहता था, उठता था, बैठता था, सोता था, जागता था, वो हमसे जुदा हो गया। लेकिन जिसकी मिल्कियत है उसने जब तक चाहा रखा और जब चाहा वापस ले लिया। जब तक चाहा दुनिया में रखा। तो मौत एक ऐसी शय है, इसमें न जवान, न बूढ़ा, न बच्चा, न मर्द, न औरत, किसी का पता नहीं, किसी का पता नहीं। आप देखते हैं कि कब कोई मर जाए, यानी बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। और फिर अगर इंसान को इल्म में होता ना, इल्म में, तो पता नहीं क्या कुछ कर लेता। लेकिन अल्लाह ने ये मौत और हयात अपने इख्तियार में रखी है, अल्लाह के इख्तियार में है, उसी के कब्जे में है। लिहाजा अब जो ये है ना कि इसी सूरे में जहाँ वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो। हम लोग समझते हैं कि शायद इससे मुराद ये है कि मैदान काज़ार में और मैदान जंग में जिसे मार दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मोमिन की मौत शहादत की मौत है। मोमिन की जो मौत होती है वो शहादत की मौत है। क्यों? हर मोमिन जब दुनिया से जाता है तो जिद्दोजहद करता है जिंदगी में, जिहाद करता है जिंदगी में। जिहाद से मुराद क्या है? जिहाद नफ्स करता है, बुराइयों से जिहाद करता है, और वो जिहाद करते करते दुनिया से चला जाता है। फिर इस दौर में जीना आसान काम नहीं है, और साबित कदम रहना दीन पर। ये मरहूम जिनकी इसारे सवाब की मजलिस है, ये दीन के ऊपर मुस्तकीम थे, साबित कदम थे। और कितनी बेहतरीन तरबियत इनके वालिदैन ने की थी कि उनको देखकर एक मोमिन का चेहरा सामने आ जाता है। एक मोमिन कामिल जो होना चाहिए वो उनमें खुसूसियात थी। मेरे कभी उनको नाराज होते हुए, कभी किसी से खफा होते हुए, कभी चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी मैंने कभी। और नर्म लहजा, नरम लहजे में गुफ्तगू। अभी तक 1 साल बीत गया, लेकिन मालूम देता है कल की सी बात है। यहीं पर बैठते हैं, यहाँ आके पढ़ा करते थे, रहते थे। बाकी यादें, मैं तो कहता हूँ कि हिम्मत है घर वालों की, बुजुर्ग को भुला रहे हैं। हम जैसे लोग सिर्फ ताल्लुकात थे, कभी कभी मिलते थे, दोस्ती थी, मोहब्बत थी। जब हमें हर वक्त निगाहों के सामने उनका चेहरा रहता है तो फिर घर वालों पर क्या गुजरती। तो किसी से पूछे, है ना, अल्लाह दिखाए ना अलम नूरे नजर का, बह जाता है आंखों से लहू कल्बो जिगर का। बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा। तो ये मौत है, ये हयात है, ये जो शहादत की मौत है। जब मोमिन यहाँ से जाता है तो शहीद होता है। इसीलिए तुम न कहो कि मुर्दा है। अच्छा, कहने पर पाबंदी नहीं, समझने पर भी। दूसरी आयत में है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, समझो भी मत जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए मुर्दा हैं। लेकिन समझने पर कहीं पाबंदी नहीं होती, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ समझने पर भी पाबंदी है और कहने पर भी पाबंदी है। बहुत पढ़े लिखे मोहम्मद। जैसा कि मैंने कहा, आज की मेरी गुफ्तगू उन्वान सब्र है, और मैं इसलिए सब्र की तकलीफ कर रहा हूँ कि सब्र की तलकीन करूँ बाप को कि सब्र से काम ले, भाई को, उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को कि सब्र से काम लेना है, और उनके दोस्त अहबाब को और चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, कि सब्र है क्या। तो सब्र की तारीफ क्या है? किसी नापसंदीदा अमल के सबब नफ्स को बेताबी से महफूज रखना। जब भी कोई अमल ऐसा हो जाए तो नफ्स को बेताबी से महफूज रखने का नाम सब्र है, रोकना। देखिए, जब इंसान रोकता है, सब्र में क्या करता है, जी चाहता है कि मरने वाला है, हम उसके साथ मर जाए, लेकिन मर नहीं सकते, तो इंसान को रोकना पड़ता है, अपने आप को दूर रखना पड़ता है। इसीलिए ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं सब्र यमनउल बातिन अल इज़्तिराब, सब्र इंसान के बातिन को इज़्तिराब और बेचैनी से रोकता है। बातिन को, दिल को इज़्तिराब और बेचैनी से रोकता है। वलिसान अन शिकायत, और ज़बान को शिकायत से रोकता है। ज़बान से इंसान शिकवा नहीं करता, ये है, ये है, ये है, ये है ना, मौत ने हमारा ही घर देख लिया है, मौत तो यहाँ आ गई है, मौत तो ऐसी है, मौत तो ऐसी है, शिकवा करने लगता है इंसान। तो कहा कि बातिन को, क़ल्ब को रोकना है इज़्तिराब से, दिल में बेचैनी ना हो, ये सब्र है। दिल को इज़्तिराब से रोकना है, ज़बान को शिकायत से रोकना है, और आज़ा को गैर मोताद हरकतों से रोकना है।
जैसे बेतुकान इंसान हाथ इधर से उधर हिला रखता है, चेहरे की कैफियत बन जाती है, पैर की कैफियत बन जाती है। ये जो इंसान के आज़ा में जो कैफियत पैदा होती है, इन पर कंट्रोल का नाम सब्र है, इन पर काबू पाने का नाम सब्र। दूर पढ़े हुजूर फरमाते हैं सब्र और सलासा, सब्र 3 तरह के होते हैं और तीनों के दर्जात भी बड़े बुलंद हैं। पहला सब्र है सब्रुन इंदल मुसीबत, जब किसी पर मुसीबत पड़ती है तो इंसान सब्र करता है और इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? अगर इंसान मुसीबत पर सब्र करेगा तो इसका 300 दर्जात हैं, 300 दर्जात इंसान को मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है, इससे भी बड़ा है, सब्रुन अला ताअत, इताअत पर सब्र करना। इताअत पर सब्र करने के माना क्या है कि सर्दी का आलम है, सुबह का वक्त है, नींद आ रही है और इंसान बेदार हो रहा है नमाज पढ़ने के लिए। जाहिर है कि गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल कर रहा है, वुजू की जरूरत है, वुजू कर रहा है और रात भर का जागा हुआ है, फिर भी नमाज के लिए उठ रहा है। तो माह रमजान है, गर्मी के दिन है, बहुत बड़ा दिन है, फिर भी रोजे रख रहा है। तो इताअत पर सब्र करना। देखिए पहला सब्र क्या था? मुसीबत पर, इसको हम बहुत बड़ा सब्र समझते नहीं, ये बहुत कम दर्जा है। जो दूसरा दर्जा है इताअत पर सब्र करना। इताअत करना आसान काम नहीं है। अब इताअत गुजारों से पूछो कि जो इताअत करते हैं, 2 तरह के लोग हैं ना, कुछ इताअत करने वाले हैं, कुछ इताअत करने वाले नहीं हैं। तो जो अल्लाह की इताअत कर रहे हैं इस दौर में, उस दियार में रहकर अल्लाह की इताअत करना बहुत मुश्किल काम है। इंसान अपने आप को काबू में रखता है और इंसान इताअत कर रहा है कि अब ऑफिस में है, मसरूफियत है, फिर भी नमाज के लिए वक्त निकाल रहा है, फिर भी मसरूफियत है, फिर भी जनाब दीन के लिए वक्त निकाल रहा है, कितने भी मसरूफ हैं, फिर भी जनाब आ रहा है और आने के बाद मजलिस में शरीक हो रहा है। किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान जो वक्त निकाल रहा है, तो सब्रुन अला ताअत। आज अक्सर मेरी गुफ्तगू सब्र के उन्वान पर है। सब्र है क्या? सब्र की तारीफ क्या है? तो पहली सब्र है मुसीबत पर, जब इंसान को मुसीबत आती है तो सब्र करता है। और दूसरी कैफियत है सब्रुन अला ताअत, इताअत पर सब्र करना। तो इसके 600 दर्जात हैं। मुसीबत पर करने वाले के लिए 300 दर्जात हैं और इताअत पर सब्र करने वाले के 600 दर्जात हैं। अब तीसरी जो किस्म है जो सबसे बड़ी है वो है सब्रुन अनिल मासियत, नाफरमानी पर सब्र करना। नाफरमानी सब्र करने के माने क्या है कि अल्लाह की नाफरमानी न करे इंसान। देखिए गुनाह में बड़ी ताकत होती है, गुनाह अपनी तरफ खींचता है। इंसान को दोस्त खींच रहे हैं, अहबाब खींच रहे हैं, फ्रिज खाने से भरा हुआ है, भूख लगी हुई है, लेकिन इंसान फ्रिज खोलकर पानी नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बुराई के तमाम असबाब मौजूद हैं, बुराई के करीब नहीं जा रहा है, जाहिर जितने बहकाने की किस्में हो सकती है सब मौजूद है, फिर भी इंसान अपने को कंट्रोल कर रहा है। तो मासियत के ऊपर सब्र करना, मासियत पर सब्र इताअत से भी बढ़कर है, क्योंकि दुनिया में जो गुनाह है उसके ज़ाहिर अट्रैक्शन बहुत है, उसमें बहुत ज़्यादा जाज़बियत और कशिश है और इंसान को अपनी तरफ माइल कर रहा है। लेकिन ये सब्र करने वाला उस गुनाह से बच रहा है, क्योंकि अल्लाह का इसे एहसास है कि अल्लाह है जो खालिक कायनात है, जो मालिक कायनात है, जिसे मैं पैदा किया है, जिसे हमें रोका है। तो रुक जाना बहुत बड़ी बात है। इताअत करने से भी बढ़कर है रुक जाना, गुनाहों से रुक जाना बहुत बड़ी बात है। यानी इसके 900 दर्जात हैं, 900। रूद पढ़े में कर मोहम्मद। सब्र मामूली बात नहीं है। सब्र की अजमत यह है कि मोमिनीन से कहा गया है जब भी एक दूसरे से मिलो, अहद इरशादत में जब भी लोग मिलते थे एक दूसरे से तो एक सूरे की फरमाइश करते थे और एक सूरा सुनाया करते थे। ये सूरह है ना कि वलसर इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाइश करते थे कि सूरह सुनाओ। क्यों फरमाइश करते थे? क्योंकि इसमें सब्र की ताकीद की गई है। व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ की तलकीन भी करते हैं और सब्र की ताकीद करते हैं, ताकि रिमेंबर हो, ताकि याद रखें कि सब्र आखिरी बात इसमें की गई तमाम खसारे में है, पूरी कायनात खसारे में है, सवाए उन लोगों जो ईमान लाए, अमाले सालिहा बजा लाए, व तवासौ बिल हक़, हक़ की तलकीन करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की ताकीद करते रहे। तो सब्र की तरफ आमादा कर रहे, लिहाजा उनका बहुत बड़ा दर्जा है, बड़ा मुकाम। और फिर सूरह रात में इरशाद फरमाया कि अब जन्नत में जाएंगे
जाने वाले, तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो जो तुमने दुनिया में सब्र से काम लिया। फनेमा उक़बद्दार, बेहतरीन अंजाम है, और ये घर तुम्हारे लिए आखिरत का मुहैया है, तुम्हारे लिए बेहतरीन अंजाम है, तुम्हारे लिए रिवॉर्ड जो मिला है, अवार्ड जो मिला है वो ये है, सब्र की बुनियाद पर तुमने दुनिया में सब्र से काम लिया, तो आज देखो तुम्हारा क्या मुकाम है, आज देखो तुम्हारी क्या हैसियत है, आज देखो तुम किस जगह पर पहुंचे हुए हो। और फिर कुरान कहता है वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, नहर की आयत है। हम सब्र करने वालों को उनके अमल से बेहतर अजर देंगे, उनके अमल से बेहतर अजर देंगे, अमल जितना है उससे बेहतर अजर देंगे सब्र करने वालों को। तो वो है कि सब्र करने वालों का मुकाम आला है ना, जब तो अजर बेहतर मिलेगा, वरना अजर कमतर मिलता। इनको जो बेहतर अजर मिल रहा है इसलिए क्योंकि इनका मुकाम बहुत आला है, और इसीलिए सब्र जो है उसके लिए दास्तानें भी हैं सब्र की। और कुरान में सूरह कहफ में एक वाक़या है कि इंसान सब्र कब करता है, क्या कैफियत होती है। आपने नाम सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो नबी थे, उलुल अज़्म थे, साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे, कलीमुल्लाह थे, उनके ऊपर तौरात भी नाज़िल हुई, बड़े उलुल अज़्म। सबसे ज़्यादा कुरान में जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, रसूलुल्लाह से भी ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा। ऐसे नबी, उनको दिल में ख्याल हुआ कि शायद इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। ये ख्याल किसी को नहीं होना चाहिए, ये ख्याल इंसान को मार देता है। बस ये ख्याल हुआ तो अल्लाह ने कहा अच्छा आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि फौका कुल्ल अज़ीज़ अलीम, हर आलिम के ऊपर एक अलीम है, जाओ अब्दन में बादना, हमारे बंदे से मिलो। भेज दिया। अब जनाब ये तलाश करते हो अपने साथी यूशा बिन नून के साथ पहुंचे, तो वो जगह थी जहाँ पर, वहाँ देखा तो अल्लाह के बंदे थे, उससे मुलाकात हुई। उनका नाम खिज़र बताया जाता है। खैर कोई भी हो, अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अब्दन मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे से मुलाकात। उन्होंने कहा ये हुजूर आप हमें साथ ले चलेंगे, अल्लाह ने भेजा है। कहाँ? एक शर्त से साथ ले चलूंगा कि आप कभी सवाल नहीं करेंगे, आप कभी एतराज नहीं करेंगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। खेले अच्छा ही पाबंदी कहाँ? और पहले कहते इन्नका लन तस्ततिया माया सब्रा, आप हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। वो कैफा तस्बिरो मालम तोहित में ही खुबरा, और जिसकी आपको इल्म ही ना हो जिस बात का, उस पर सब्र कैसे करेंगे? इल्म नहीं आपको है तो आप सब्र कैसे करेंगे? आप एतराज जड़ देंगे ना, इस बात का इल्म नहीं है आप सब्र नहीं करेंगे। तो ये वादा करते हैं काला सतयदुनी इंशाबिरन, तो इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले हो पाएंगे। वला आसी लका अमरा, और मैं किसी अमर में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अब चले तो कश्ती में बैठे उसको सुराख कर दिए हज़रत खिज़र ने। ये क्या किया? आप चाहते हम सब डूब जाए? अरे तो कहा अलम अकुल्ला का इन्नका लन तस्ततिअ, मैंने कहा नहीं था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। खैर कहा कि अच्छा आप माफ करिए, आइंदा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आगे चले, एक लड़का था उसको कत्ल कर दिया। बाहर उतरे, एक लड़के को खाली क़तल ज़कियतन बगैर हक़, नाहक आपने एक लड़के को कत्ल कर दिया। कहा कि मैंने कहा था ना क्या एतराज़ नहीं करेंगे, कहा माफ कर दीजिए, अब अगर मैंने आखिरी एक मौका चांस दे दीजिए। खैर उनका अच्छा। अब मैं तो देखा शहर में भूख लगी थी, खाना तलब किया, खाना दिया नहीं शहर वालों ने, बड़े ऐसे बेईमान शहर वाले थे, कोई मेहमान नवाज नहीं थे, और तलब किया, भूख लगी थी। इतने में देखा कोई दीवार कर रही है, तो उन्होंने हज़रत मूसा कहा आओ आओ जरा ये दीवार सही करें। अजीब बात है, अभी इन लोगों से हमने मांगा, इन्होंने जवाब कहने नहीं ये हुक्म है, ये करना है। खैर दीवार सही कर दी, और उसके बाद से कहने लगे आप इसकी उजरत तलब कर लेते। कहा मैंने कहा नहीं था कि मैं उजरत की तलब करूँगा, लेकिन आपने एतराज़ क्यों किया? बस हाला फिराको बैनी बहने, अब हमारे आपके दरमियान जुदाई हो जाएगी और आप सब्र नहीं कर सकते। इसके माना सब्र करना इतना मुश्किल काम है कि मूसा कलीमुल्लाह जैसा फर्द भी सब्र नहीं कर सका। अब आप देखिए मूसा कलीमुल्लाह जैसा फर्द भी सब्र नहीं कर सका, और उनको एतराज करना पड़ा क्योंकि वो जाहिर को देख रहे थे,
और ज़ाहिरी बुनियाद पर ये अमल अजीब और गरीब नजर आ रहा था, लेकिन हज़रत खिज़र अम्र रब की बुनियाद पर ये अमल अंजाम दे रहे थे। और बाद में ताबील बताई गई है, ज़ालिका ताबील, ये वो ताबील है जो मैंने अमल किया है कि देखो ये कश्ती जो है मिस्कीन की कश्ती थी और जाबिर बादशाह सही सालिम कश्ती को पकड़ रहा था, मैंने ऐप लगा दिया ताकि इसका रोजगार बाकी रह जाए और इस तरह कश्ती चलाता रहे। ये लड़का जो था ये बड़ा था तो जाहिर माँ बाप मोमिन थे, ये लड़का बड़े होकर न जाने क्या गुनाह करता और इसकी वजह से माँ बाप इस्लाम से दीन से दूर हो जाते, लिहाजा इसको कत्ल कर अल्लाह ने इसकी जगह और औलाद दी। और कहते हैं वो जो औलाद बाद में मिली उससे अंबिया पैदा हुए, बाद में जो उनको औलाद मिली उससे अंबिया और रसूल पैदा हुए, उन्हीं जिनको कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद फिर कहा कि तीसरी बात यह है कि वो दीवार यतीम बच्चों की थी, इनका बाप मर गया था, अगर वो दीवार गिर जाती तो खजाना था उसके नीचे, ये लोग लूट के ले जाते। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े हो जाएं तो और कहा ये है ताबील जिसका आप सब्र नहीं कर सके, और भला कैसे सब्र कर सकते थे जिसका आपको इल्म ना हो। पता चला, आप खुद सोचे, अब इससे अंदाजा लगाएं हमारे अइम्मा का कि हमारे अइम्मा का मुकाम क्या है कि अगर मामून रशीद जहर दे रहा है और अंगूर में है और अंगूर इमाम खा रहे हैं और पूछता है कहाँ कहाँ, जहां तूने चाहा है वहां मैं जा रहा हूं। इल्म है कि इस अंगूर में जहर है और इस इल्म के बावजूद खा रहे हैं, और आप कैसा भी तो खुदकुशी है, नहीं खुदकुशी नहीं, अमर इलाही के पाबंद हैं। जाहिरी लिहाज से जो इल्म है उस पर अमल नहीं करना है उनको, इसलिए कि वो इल्म इनको अपनी हैसियत से दिया गया है, जाहिरी एतबार से अमल कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब इमाम हुसैन पर एतराज न करना, इल्म था कि छोटा सा लश्कर बड़े लश्कर के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन हक को सदाकत की बका के लिए इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी थी ताकि दीन को बचा दें, इस यकीन के साथ कि हम कत्ल करते जाएंगे। लेकिन इमाम इस आयत पर अमल कर रहे थे, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटा गिरोह अल्लाह के इज़्न से बड़े गिरोह पर गालिब आ सकता है। दुरूद पढ़ मिलकर मोहम्मद तो सब्र के दस्ताने हैं और बहुत ज्यादा चीजें सब्र के बारे में हैं, और मैं घड़ी में देख रहा हूँ और ज़ाहिर के बाद कम है, लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ बातें चाहता हूँ आपकी खिदमत में गुज़ार कर दूँ कि सब्र की एक दास्तान है जो कुरान ने बयान की। और सूरह दहर में, सूरह दहर जो कसीदा है नस्र में, कसीदा है अहल बैत के बारे में, उसमें सब्र की दास्तान है। सब्र है क्या? देखिए, एक तो वो दास्तान दरसी है हसन हुसैन जो कुरान में है ना, या लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, तो मदद तलब करो सब्र और सलात से। हुजूर जब तशरीफ लाए तो देखा शहजादे कौनैन बीमार हैं, तो कहा ऐलियो सैयदा आप नजर माने, अल्लाह से नजर माने, ये भी अच्छे हो जाएंगे तो हम रोजा रखेंगे, 3 दिन रोजा रखेंगे, वही वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, तो आप रोजा रखेंगे, नजर मान ली, अच्छे हो गए। अब रोजा रखा इन्होंने, जब रोजा रखा तो अब ज़ाहिर है कुछ नहीं था, तो हज़रत अली पड़ोस में गए, शमूनी के यहूदी था, उससे कुछ जौ लिया, कुछ ऊन लिया, लेकर आए, 3 हिस्से कर दिए, और ज़ाहिर 3 दिन का रोज़ा था। अब शाम को जो इफ्तार करने के लिए 5 रोटियां रसूल ने, ज़ाहिर इसमें शरीक नहीं है, लेकिन 5 हस्तियां हैं। 5 हस्तियां कौन है? हज़रत अली हैं, जनाब सैयदा हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, उनकी कनीज़ फिज़्ज़ा है, ये 5 हस्तियां हैं। अब जब रोज़ा रखा और इफ्तार करने लगे तो एक दरवाजे पर किसी ने खुताब किया, ना मिस्कीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, सब ने अपनी अपनी रोटियां उठा के दे दी और नमक से इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर ये अमल हुआ, तो फिर कहा कि यतीमुन यतीम, सब ने अपनी रोटियां यतीम को दे दी। तीसरे दिन हुआ, जब खाने लगे तो आवाज आई अनासीरुन मैं असीर हूँ, सब ने अपनी रोटियां असीर को दे दी, इन्हें कह दी। अब जब ये अमल हुआ तो ये अमल ऐसा महबूब था। अब यहाँ सब्र से काम लिया, भूख भी है, प्यास भी है, लेकिन रोटी अपनी उठा के दे रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, नमक से इफ्तार कर रहे हैं। ये इसार की वो अजीम दास्तान है कि आप देखें कि कुरान ने पूरा कसीदा नाज़िल कर दिया, वयुसलूना अला अनफुसिहिम, ये अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं। और उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, इसका रिवार्ड इनके 3 दिन के अमल को तराजू के पलड़े पर रखा, और तराजू के दूसरे पलड़े पर सारी जन्नत, कौसर, इनामात सब रख दिए। फिर भी इनके अमल का वजन भारी था। जब अमल का वजन भारी था तो मालूम है क्या कहा, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, जो इन्होंने सब्र किया है उसकी जजा के तौर पर हमने जन्नत दे दी।
रेशम दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन जब दे दिया तो अब आगे आयत नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन का अमल इतना आला था कि अल्लाह ने कहा वकाना सायुकुम मशकुरा, तुम्हारा अमल ऐसा है कि हम तुम्हारे इस अमल के खुद कदरदान और शुक्रगुजार हैं। क्या कहना है अहले की अज़मत का, अल्लाह जिनका शुक्रिया अदा कर रहा है, अल्लाह जिनके अमल का कदरदान है, वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतुन हारिया, जज़ा है। और फिर कुरान में बहुत ज़्यादा सब्र की दास्तानें लिखी हुई हैं और सब्र के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। कहते हैं कि जब मोमिन कब्र में दाखिल होता है तो नमाज दाईं तरफ होती है, ज़कात बाईं तरफ होती है, नेकियां सामने होती हैं, और सब्र बेचारा एक कोने में जाके बैठ जाता है चुपचाप। और सब्र कहता है, जब फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं तो सब्र कहता है नमाज और ज़कात से और नेकी से जाओ, जाओ मदद करो अपने साहब की, जिसने नमाज पढ़ी थी, जिसे ज़कात दी थी, जिसे नेकी का काम किया था, उसकी मदद करो, मदद करो। फ़इन अजज़्तुम मिन्हु फनादूनहु, ये काफी की रिवायत है, अगर तुम आजिज आ जाओगे और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे तो मैं सब्र आगे बढ़ूंगा और इसको निजात दिला दूंगा। तो सब्र उस कुव्वत का नाम है जो निजात दिलाने वाला है, सब्र उस ताकत का नाम है जो निजात दिलाने वाला है। सब्र ऐसा नहीं है कि इंसान जो है सब्र के अंदर पसपाई अख्तियार करता है, बल्कि सब्र एक कुव्वत है, ताकत है, अजीमत है, इस्तेकाम है, और वो मंजिलत है कि सब्र के जरिए इंसान बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला कर सकता है और तूफान के धारों का रुख मोड़ सकता है। मौलाए कायनात ने सब्र की जो दास्तान बयान की है और फिर फरमाया है, ज़ाहिर अब मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा जो मैं आगे बात को बढ़ाऊँ, वहाँ फरमाते हैं, और नहज बलागा में जो खुतबा है तो उसमें इमाम फरमाते हैं कि वह तफ़ीक़ तौर तई बैना नसूल बेदिन जज़्ज़ा, मैं सोचता रहा कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूँ, हम अस्बिरा ला तक़ीतिन अमिया, इस अंधी गुमराही पर सब्र करूँ, अंधी गुमराही पर सब्र करूँ। फरअयतु सब्र ला हाता अहजा, तो इन दोनों बातों पर क्या है, क्या नसूल बेदिन जज़्ज़ा, मैं अपने कटे हुए हाथों से हमला करूँ। कटे हुए हाथ से मुराद ये नहीं कि हाथ कटे हुए थे, यानी कोई साथी नहीं है, कोई मददगार नहीं है। अस्बिरा ला तक़ीतिन अमिया, या इस अंधी गुमराही पर सब्र करूँ। अरा तुरासी रहवा, मैं देख रहा था मेरी मिरास लुट रही थी, मैं देख रहा था कि लोग कब्जा कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करता। फिर फरमाते हैं फरअयतु सब्र ला हाता अहजा, दोनों बातों पर मेरे सब्र को ज्यादा बेहतर जाना। फसबरतु व फिलैन क़ज़न व फिल हल्क़ शजावा, मैंने सब्र किया, मेरे आंखों में खसो खाशाक थे, मेरे हलक में कांटे पड़े हुए थे, मेरे हलक में कांटे पड़े हुए थे, मैंने सब्र किया। इसी के मैंने देखा कि सब्र ही जो है ज्यादा बेहतर चीज है, और तमाम अइम्मा ने सब्र से काम लिया है। ये सब्र की दास्तान मामूली दास्तान नहीं है, सब्र की इतनी अजीम दास्तान है। सब्र है क्या? सब्र है मुसीबत के मुकाबिल में, और शुक्र होता है नेमत के मुकाबिल में। जब कुरान ने सूरह सफ में बयान किया है, फलम्मा बलग मौसई, जब बेटा दौड़ भाग के काबिल हो गया, काला यवत, और कहा कि या बोले यही फिर मना में नियत बहुत, मेरे बेटे मेरे ख्वाब में बार बार देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये एक बाप बेटे का तस्करा है, हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल का तस्करा है। काला या वती फरमा तोमर, कहा अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है बजा लाइए। फतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप ने बेटे से जिक्र किया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, और बेटा क्या कहता है, आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। इसके माना क्या है? बाप ने जब जिक्र किया अपने ख्वाब का, तो बेटे ने कहा ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, ये तो वही इलाही है, और आप मुझे बिल्कुल ज़िबा कर दीजिए, और इस मुसीबत पर मैं सब्र से काम लूँगा। देखिए ये कुरान है, अगर इसके मुकाबिल में हम देखें और एक जुमले पर गौर करें, वाकई अजीब व गरीब जुमला है। और वो जुमला ये है कि किस तरीके से जब आखिरी वक्त है और मौलाए कायनात जाते हैं, और फिर मौलाए कायनात खुतबा देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन का अगर आप देखेंगे जाकर ज़रा सा, तो आशूर की शब खुतबा दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका
परवरदिगार मैं तेरी हम्द करता हूँ। अला अन, इस बात पर कि तूने हमें नबुव्वत से सरफराज फरमाया है और फक्कहतना अल्लमतना कुरान, तूने हमें कुरान की तालीम दी है। और फक्कहतना फिद दीन, और तूने हमें दीन में तफक्कुह अता किया है। वजअलता लना अस्मान व अब्सारन व अफइदतन, और तूने हमें आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं, हमें दिलो दिमाग अता किए हैं। आंखें दी हैं, अस्मान व अब्सारन व अफइदतन, कान दिए हैं, आंखें दी हैं और दिलो दिमाग अता किए। फजअलना, अब इमाम के अल्फाज क्या हैं? उधर कुरान की आयत क्या है कि हजरत इस्माइल क्या कहते हैं? सतजुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? फजअलना मिनश शाकिरीन, परवरदिगार तू हमें शुक्रगुजारों में करार दे। शुक्र, देखिए दोनों जगह मौत है, दोनों जगह कत्ल होना है, वहां भी कत्ल होना है, यहाँ भी कत्ल होना है। तवज्जो चाहता हूँ, जब दोनों जगह कत्ल होना है तो फर्क ये है कि वो कहते हैं साबिरीन, हुसैन कहते हैं शाकिरीन। पता चला मंजिल तो हुसैन ये है कि न सिर्फ अपने कत्ल होने को बल्कि जान देने पर फख्र कर रहे हैं और नेमत समझ रहे हैं। नेमत है अगर मेरे जान देने से दीन बच जाए, इस्लाम बच जाए, कुरान बच जाए और दीदारी बच जाए, ये सारी चीजें बच जाएं, तो इसके लिए जाहिर है मैं शुक्र रब अदा करूंगा क्योंकि ये नेमत है। फजअलना मिनश शाकिरीन। और फिर कहा तूने परवरदिगार, तूने हमें सरफराज किया नबूवत के जरिए, तूने हमें कुरान का इल्म दिया है, तूने और हमें फिक़्ह अता की है, और तूने हमें ये आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं, हमें दिलो दिमाग। इसके माना इमाम हुसैन का इक़दाम एक्टरनम नहीं था, बगैर सोचे समझे नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग थी, पूरा मंसूबा था मुकम्मल। एक जानते बूझते हुए इमाम जा रहे थे। इमाम जानते थे कि किस तरीके से मैं जान दूंगा और दीन को किस तरह बचाना है। उसके लिए बच्चे को भी कुर्बान करूंगा, जवान को भी कुर्बान करूंगा, बूढ़ों को भी कुर्बान करूंगा, दोस्त को भी कुर्बान करूंगा, अहबाब को भी कुर्बान करूंगा, सबकी कुर्बानी में दे दूंगा। इसलिए कि दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, और इस्लाम की बका के लिए ये कुर्बानी इमाम आली मुकाम देना चाहते थे और एक से एक कुर्बानी दी। आपने मुझसे पहले सुना है हज़रत अली अकबर के मसाइब के बारे में। हज़रत अली अकबर कौन है? हज़रत अली अकबर वो हैं, ये जाहिर है कि क्यों अल्लाह ताला ने ये अली अकबर को का चेहरा जो है हुजूर का चेहरा बना दिया था। कभी आपने इस पर गौर किया है? बात ये है कि वो लोग भी मौजूद थे यजीद के साथ जो रसूल को देखे हुए थे, जो रसूल का चेहरा देखे हुए थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये जो गिरोह है इसका ताल्लुक किससे है। ये वो हैं जो फर्जंदे रसूल हैं, जो बार बार कह रहे हैं ताकि कम से कम चेहरा देखकर तो तुम्हें रसूल याद आ जाए। ये चेहरा देखकर तो तुम रसूल को याद कर लो कि देखो वो रसूल है जिन्होंने तुम्हें दीन दिया था, तुम्हें कुरान दिया था, तुम्हारी ये तालीमात की थी। तुम उसी रसूल के नवासी को कत्ल कर रहे हो, उसी रसूल के नवासी को कत्ल करने के दर पे हो। इसीलिए ये तमाम चीजें थी ताकि लोग समझ लें और इमाम आली मुकाम कुर्बानी। लेकिन और कुर्बानी, ये जो जंगें हैं और ये जंग करबला है, इसमें फ़र्क है। और जितनी जंगें हैं, बद्र हो, उहद हो, खैबर हो, खंदक हो, इसमें हुजूर ने अजीज़ों को पहले भेजा है, असहाब को पीछे रखा है। लेकिन हज़रत हमज़ा जा रहे हैं, हज़रत अली जा रहे हैं, लेकिन इस जंग में असहाब पहले गए हैं। क्यों? ज़रा सोचे, इसलिए कि इस जंग में भूख भी है, प्यास भी हुआ ना। नबलवन्नकुम बिशैइमिल खौफ़ि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वलअन्फुसि वस्समरात। ये पूरी आयत की तफसीर अगर आप देख लेंगे तो वाक़ई करबला है कि इस तरह इस जंग में सब कुछ है, कमी है माल की भी, जान की भी, औलाद की भी, फलों की भी। और इमाम आली मुकाम पहले असहाब में हैं, असहाब जानिसाज़ी कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। और जब मुस्लिम ने सजा जख्मी हुए हैं, और जख्मी होने के बाद मुस्लिम ने सजा का आखिरी वक्त था, हबीब को करीब बुलाया और हबीब से एक जुमला कहा, हबीब जरा आओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जरा करीब आ जाओ। आवाज़ में जरा नकाहत थी। हबीब ने कहा कि मैं आपसे कहता, अगर मुझे यकीन होता मैं आपके बाद जिंदा रहूँगा तो मैं ज़रूर कहता कि आप वसीयत करें। नहीं, अभी वो वसीयत है, बड़ी तवज्जो सुनिएगा, अभी वसीयत है। कहा क्या वसीयत है? एक जुमला कहा है, सुन सकेंगे मोमिनी? जुमला कहा है, मुस्लिम इब्ने उसजा कहते हैं उसी का बेहाजा। इमाम ने इशारा किया, इशारा करके देखो मैं वसीयत करता हूँ, मेरे मौला कर दिया, मेरे बाद में
مولا کا خیال رکھنا، ان پر ہاتھ ڈھانے دینا، ان پر ہاتھ ڈھانے دینا، میرے مولا کا خیال رکھنا۔ ایک قربانی ہو گئی، اور اس کے بعد جب عزیزوں کی قربانی کی باری آئی ہے اور امام نے عزیزوں کو بھیجنا شروع کیا ہے، تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی اول ہو، میرا بیٹا بھی آخر ہو، شروع میں علی اکبر جائیں، آخر میں علی اصغر جائے۔ میں جب قربانی بیان کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مولا اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو آخر میں گیا ہے وہ سب سے بڑا صابر ہوگا، تو مجھے کہنے دے کہ کربلا کا سب سے بڑا صابر علی اصغر ہے، اس سے بڑا صابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آخر میں اس کی قربانی ہوئی ہے، آپ سے پہلے اس کی قربانی ہوئی ہے، جو آخر میں گیا ہے، کیا کہنا اصغر کا۔ اور پھر اکبر بار بار آتے ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، بار بار آتے ہیں، اور کہا تو امام نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ تم جاؤ، اچھا جاؤ جا کے خیمے میں بیویوں سے خدا حافظ کہہ دو، اکبر آئے ہیں۔ آنے کے بعد سے بیویاں جمع ہو گئی ہیں، بیویاں جمع ہو گئی، طاہر اکبر کی گرد سب جمع ہو گئی، کسی کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا، لیکن اکبر سے کہا ہوگا کہ اکبر تم تو ہمیں مدینے سے لے کر آئے تھے نا، یہ بتاؤ میں واپس کون لے جائے گا، تم میدان میں چلے گئے تم قتل ہو جاؤ گے، ہمیں مدینے واپس کون لے جائے گا۔ ایک بیوی اکبر کو دیکھتی تھی اور دیکھ کر گیری ازاری کرتی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ بیویوں نے اکبر کی گرد حلقہ بنا لیا اور زندگی میں باغ پرا کی صدائیں بلند ہوئی، ایک بیوی اکبر سے لپٹ کے رو رہی تھی، اور اس کے بعد سے کہتے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اٹھتا کیوں تھا، اکبر باہر آنا چاہتے تھے، گرتا کیوں تھا، بیویاں روک لیتی تھی۔ میں نے روایت میں دیکھا کہ کسی نے اکبر کے دامن کو پکڑا ہے، آپ سمجھ گئے، اگر کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھتا تو پھر کوئی بڑا ہوتا، اس دامن کو پکڑنے والی سکینہ ہوگی، سکینہ کہا ہوگا میرے بھیا نہ جانا، اس لیے تم چلے گئے تو میرے کو واپس آنے والا۔ اجبن اللہ اکبر آئے، امام علی مقام نے نجاب فرض کو تھاما اور ایک دعا پڑھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز لهم غلام اشبنا ہے خلقا و خلقا و منطقا رسول اللہ، پروردگار گواہ رہنا اب وہ آ رہا ہے کہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں نبی کا مشابہ ہے، نبی کے معنی سے وہ آ رہا ہے۔ اور جب اکبر کو بھیجا ہے گھوڑے میں سوار کر کے، اب علی اکبر جا رہے ہیں، ذرا آؤ علی کی جگہ دیکھو، ایک وہ علی پہ بھی طالب تھے، یہ دوسرا علی اکبر ہے، ذرا علی اکبر کی جگہ دیکھو۔ اب روانہ کیا ہے اور علی اکبر سے ایک جملہ کہا ہے، بیٹے پیچھے مڑ کے دیکھتے جانا۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا پیچھے آ رہے ہیں، اور جب آتے ہوئے دیکھا کہ بابا آپ نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا، کیوں نے کہا تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر بیٹا ہوتا تو جانتے کہ بیٹے کی رضائی باپ پر کتنی شاق ہوتی ہے۔ عجب اللہ اکبر آئے، جنگ کی 80 افراد کو مارا اور اس کے بعد سے واپس آئے، کہا بابا پیاس قتل کی لاتی ہے، کاش مجھے پانی مل جاتا تو پھر میں دشمن پہ جا کے دوبارہ حملہ کرتا۔ کہا اچھا بیٹا قریب آؤ، میری منہ میں اپنی زبان ڈال دو۔ اب جو زبان ڈالی تو فون کھینچ لی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اکبر نے بابا آپ کی زبان میں تو زیادہ کانٹے ہیں، ایک انگوٹھی دی ہے، کہا اسے منہ میں رکھ لو، جاؤ، اور اس کے بعد سے تمہارے جد بابا سے رب کریں گے، جد سے رب کریں گے، اور اس کے بعد سے گئے کہ میرے بابا سے رب کریں گے، اور ادھر علی اکبر گئے ہیں، جنگ کی ہے۔ اتنے میں دو صرف ایسے افراد ہیں جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، ایک عباس، دوسرے اکبر، مدد کے لیے آواز دے دی ہے، کہا یا بتاؤ علیکم منی السلام، بابا اکبر کا سلام ہو۔ ادھر یہ آواز پہنچی ہے، ادھر حسین چلے، ادھر زینب خیمے سے نکلی، قبل اس کے حسین پہنچتے زینب لاش پر پہنچ گئی، اور لاش پر پہنچنے کے بعد سے میں کہوں گا زینب آپ کسی موقع پر نہیں آئی، اس موقع پر کیوں آئی؟ کہا اس لیے کہ کڑیل جوان کی میت تھی، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا، اس لیے میں آ گئی، اور آنے کے بعد سے دیکھا ہے۔ اب روایت میں ملتا ہے حسین نے کہا بہن واپس جاؤ، اور اب روایت میں ہے کہ سینے میں پرچی تھی، اب علی اکبر کے سینے سے باپ پرچی کو نکال رہا ہے، یا علی کہا ہے، اب یا علی کہہ کے نہ جانے علی اکبر سے یا علی کہا ہے، یہ اپنے باپ علی کو آواز دیتی، بابا دیکھو آج بوڑھا باپ جوان کے
لینے سے بچے اللہ تعالیٰ قبضہ سے عالم الجلال ومحیط القریب القریب پروردگار ہمیں پروردگار ہمیں اس کو فرما ہر مجھے رو قبضہ فرما پروردگار جو شفا کا مستر تعجیل فرما پروردگار مغفرت میں تعجیل فرما مرحوم کو جوارے امام حسن میں جوارے ام ہر اسلام کی فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما جو بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما آپ سے گزارش ہے کہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح پہنچے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں رئیس صاحب سے محمد صادق رضا و سید قاسم رضا بسم اللہ بسم اللہ